commercial industry, you need to approach yourself as a small business if you don't have a team. You are an artist entrepreneur. It requires training like the programs that you're doing. You can take control. And so education to diversify your revenue streams, build a brand, understand how to do the business, and continue the creative collaborations to propel are critical. Nice. I myself also amateur musician and just mingle with the Indian musicians sometimes, jamming. So it's a kind of a personal public this mixture sphere that I'm trying to create. So in this occasion, I'm very happy to maybe be friended with you all and maybe share maybe yourself or your music just with our public media so that maybe Japan's music fan notice new talent and expand the fan base. Sato-san, question to you specifically. There are artists in the audience. If they have an ambition to someday play in Japan or also build a fan base, they are doing everything on TikToks and Instagrams of the world. What can they look at the Japan Foundation in Delhi for, Delhi-based artists, if they want to take any kind of help of yours to create these bridges? As I said, just in the Japanese government side, just has very limited one-way scheme. So what we can do, or we want to do, is to maybe make a connection or route to the either festival or performing ground, just and maybe invite the corporate just for the funding support. So just create a kind of a more wider participation just to realize that. But by taking from there, आप ब्लैकपिंक की बात कर रहे थे. ब्लैकपिंक, BTS, कोरियन म्यूजिक इतना स्प्रेड हो गया है, और फिर जापान में क्या बॉटलनेक आपको लग रहा है? ये इंडो जापान कोलैबोरेशन इतनी क्यों नहीं हो रही जितनी ये कोरिया का म्यूजिक और उनके आर्टिस्ट मूव हो रहे हैं? तो आपकी क्या? जैसे कि पॉप को अभी मेरे बच्चे भी सुनते हैं, थोड़ा सा जे पॉप को सुनते हैं, तो ये दोनों तरफ से है. अगर वहाँ का किसी कंट्री का म्यूज़िक और ज़्यादा बड़ा होगा तो वो इधर वालों को लगेगा कि कुछ है उसमें, तो इधर वाले उसके आसपास की चीज़ें करने की, उसके जैसी चीज़ें करने की ट्राई करेंगे. तो मुझे लगता है हो सकता है, पर उसके लिए हमें अभी जैसे मैं अगर पंजाब के आर्टिस्टों की बात करूं जो रीजनल आर्टिस्ट हैं, तो बहुत सारे आर्टिस्ट तो अगर वहाँ पे उनके पास डेली शोज़ हैं या उनके गाने सिर्फ पंजाबी ऑडियंस वाले चल रहे हैं, तो वो तो सोचते ही नहीं है वो चीज़ करने की. वो उनको लगता है कि पंजाब से अंबाला तक हम चल रहे हैं, बस हम ही धुरंधर हैं, हम बहुत बड़े हैं. उनको अपने घर से निकल के देखना पड़ेगा, अपनी छत पे जाके देखना पड़ेगा कि गांव बहुत बड़ा है, हम कहीं भी जा सकते हैं. पर वो अपने छत पे जाते ही नहीं है, नीचे गली में ही खुश हो जाते हैं कि अच्छा इधर भी तालियां बज रही हैं, इधर भी तालियां बज रही हैं. तो और जो जाने की ट्राई करते हैं जो आर्टिस्ट, वो जो टॉप 4-5 हैं उनके जैसा कंटेंट बनाते रहते हैं, तो वो अपनी चीज़ छोड़ देते हैं, अपनी चीज़ नहीं बनाते. वो उनको लगता है कि अच्छा ये 4-5 लोग ऐसे चल रहे हैं, इसके जैसा भी बनाता हूँ, इसके जैसा भी बनाता हूँ. वो पांचों जैसा बना के वो अपनी ओरिजिनल चीज़ प्रेजेंट ही नहीं करता कई बार आर्टिस्ट. तो मुझे लगता है ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आगे जा सकते हैं. Mayur sir, also as a board member of IPRS, I'd like to have closing comments, both as you in your individual capacity and from an IPRS point of view. Also guys, huge shout out to IPRS. One of the examples that actually sits very well in building structured pathways is this very event. To do a showcase conference and festival is actually a very specific, clear step in creating structured pathways. So congratulations to IPRS for doing this. Thank you. As an artist, so I don't want to speak because then शाम हो जाएगी. और मैं अभी जावेद साहब के साथ I have to do that workshop also, और फिर शाम को भी 5:30 बजे हम लोग बोलने ही वाले हैं. तो आप लोग आज के दिन में मुझे सुनेंगे 2-3 बार, तो वो बाकी बातें बाद में भी हो सकती हैं.
लेकिन फ्रॉम IPRS पॉइंट ऑफ व्यू आई एम जस्ट सेइंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल दैट IPRS इज ऑल्सो अ कंपनी. It's a not for profit company, but it's a company, and it's not mandated for IPRS to do any of these activities that we are doing. सरकार हमें नहीं कहती या हमारे मेंबर्स हमें नहीं कहते कि आप साउंडस्केप्स कीजिए. हमसे हमारे पे कोई ये नहीं है, हमारी जिम्मेदारी ही नहीं है ये. हमारा काम क्या है? रॉयल्टी कलेक्ट करना, रॉयल्टी बांटना. वो तो हम कर ही रहे हैं. लेकिन जब मैं IPRS में आया तो मुझे लगा कि इंडस्ट्री ने हमें फेल किया. इंडस्ट्री हैज बीन फेलिंग अस. लेबल्स हैव बीन फेलिंग इन ट्राइंग टू गिव द एक्चुअल रॉयल्टी टू द आर्टिस्ट एंड मेकिंग श्योर टू मेक अ सिस्टम वेयर आर्टिस्ट मोर एंड मोर आर्टिस्ट गेट व्हाट इज देयर ड्यू शेयर. एंड व्हेन द बिजनेस हैज फेल्ड अस, वी ओनली हैव टू टेक इनिशिएटिव. आर्टिस्ट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा. अब हमारे यहाँ इनकी बात सच है, आर्टिस्ट भी एजुकेटेड नहीं है, आर्टिस्टों को अपने हक पता नहीं, अपने हक के लिए लड़ना भी नहीं जानते. मगर मेरा बेसिक सवाल ये है कि आर्टिस्ट को लड़ना क्यों पड़े? जो उसका हक है उसको मिलना ही चाहिए ना. अब आप बोल रहे हो कि नहीं आपने लड़े नहीं ना इसलिए हम नहीं दे सकते आपको, तो ये आर्ग्यूमेंट ही बहुत बुरी है. और हमको सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना चाहिए दैट बिजनेसेस हैव फेल्ड अस miserably in India. Government has also been short of